हेलो फ्रेंड्स, मैं छाया यादव। इस वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट 1947 को डिस्कस करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। Indian Independence Act 1947 Preface. The Indian Independence Act 1947 marked the end of 90 years British rule in India, beginning from 1858. How beginning from 1858? We can say the revolt of 1857, also known as the First War of Independence of the Sepoy Mutiny. After that, abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenues of the British Crown. अब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल 1858 से इंडिया में हो गया। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। A hard earned, prized freedom was won after long, glorious years of struggle. But one question arises: why did the British finally quit? So, see background. First, Second World War. British government wanted the full Indian cooperation and support in World War II, but Indian Congress ने कोई support नहीं किया. Next point, Cripps Mission. Cripps Mission was failed because both the major parties, Congress and Muslim League, rejected his proposals. Gandhiji said that Cripps offered a dominion status after the war was a post-dated check drawn on a falling bank. Next, Quit India movement. Demand of freedom fighters across the country was unanimous and it was for Purna Swaraj, total independence. Gandhiji gave slogan Karo ya Maro, do or die. रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, ये कैसे रिलेटेड है? रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी फर्दर वीकेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. कैबिनेट मिशन टू इंडिया. द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया 1946, aimed to discuss the transfer power from the British government to the Indian leadership. बैकग्राउंड के पॉइंट को देखने से यह क्लियर हो रहा है कि क्या रीज़न था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लिया कि इंडिया को और दिन तक अपने अंडर में नहीं रखा जा सकता है. देन ऑन Feb 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 13, 1948. Finally, British government passed the Indian Independence Act of 1947 in July 1947, which contained the major provision put forward by the Mountbatten Plan. अब इस इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के पर्पस और मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फीचर है पर्पस. पर्पस ऑफ द एक्ट 1947, the partition of India and the speedy transfer for responsibility and all powers to Indian governments. ये पर्पस पूरी तरह से माउंटबेटन प्लान पर बेस्ड था, जिसका एम था इंडिया को फ्रीडम देना, लेकिन पार्टीशन के साथ. अब हम इसके मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे. मैंने इस एक्ट के फीचर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है कंप्लीटली एबॉलिश्ड. पॉइंट है फर्स्ट, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. नेक्स्ट, इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय. नेक्स्ट, it dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the Kings of England. Next, it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely state with the tribal areas from August 15, 1947. फर्स्ट फीचर्स में मैंने देखा कि इस एक्ट के थ्रू क्या चीज़ें एबॉलिश की गई थीं. और नेक्स्ट फीचर, न्यू चेंज. अब इंडिया का स्ट्रक्चर क्या होगा इस एक्ट के थ्रू. फर्स्ट पॉइंट है
Creation of two dominion, India and Pakistan. The act provided for the partition of India and establishment of two independent dominion, India and Pakistan, from August 15, 1947. Next, the princely states would enjoy the liberty to join either India or Pakistan or over remain independent. मैं यहाँ पर एक बात डिस्कस करना चाहूँगी कि ये लिबर्टी जो इस एक्ट के थ्रू प्रिंसली स्टेट्स को जो लिबर्टी मिली थी वो इस एक्ट का ड्रॉबैक है। हम आगे डिस्कस करेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल एंड पंजाब विल बी पार्टीशन। इस एक्ट के थ्रू, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम मैप पे डिस्कस करेंगे। रेफरेंडम इन 2 प्लेसेस। फर्स्ट NEFP, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बेसिकली ट्राइब्स एरिया। सेकंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये रेफरेंडम मीन्स पब्लिक व्यू। यहाँ पर जो इंडिया को डिवाइड किया गया है 2 डोमिनियन में, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उनका जो डिवाइडेशन है वो कैसे होगा, जैसे बाउंड्री कमीशन के थ्रू, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को लिबर्टी देके और रेफरेंडम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नर जनरल ऑफ ईच डोमिनियन। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियन है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऊपर मैंने इस फीचर्स के पहले पॉइंट में डिस्कस किया था। तो जो इंडिया एंड पाकिस्तान है वहाँ पर एक एक गवर्नर जनरल होंगे, तो ये नया चेंज हुआ था। जो थर्ड फीचर है कंटिन्यू। इस एक्ट के थ्रू क्या चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी? पहला पॉइंट है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 until the framing of new constitution by the dominion of India and Pakistan। ये जो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी वर्क करेगा। और कब तक करेगा? जब तक इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 को डिटेल में पढ़ने के लिए आप इससे रिलेटेड मेरे वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है continuance of the civil service of the crown under the government of the new dominion of India and Pakistan, means the members of the civil service appointed before August 15, 1947 would continue enjoy all benefits and legal rights। अभी तक मैंने इस एक्ट के पर्पस और फीचर्स को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट ड्रॉबैक्स देखेंगे कि इस एक्ट का ड्रॉबैक क्या है। फर्स्ट पॉइंट है दिस एक्ट ब्रोक मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। फॉर दिस रीजन इट वॉज कॉल्ड द बाल्कन प्लान बाय नेहरू। बाल्कन कंट्री साउथ ईस्ट यूरोप से रिलेटेड है, जहाँ एक बड़ा एरिया कई पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसे बाल्कन कंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही इंडिया में दिख रहा था, इसलिए नेहरू जी ने इसे बाल्कन प्लान कहा। आप देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड प्रिंसली स्टेट्स। बात पाकिस्तान की करें तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। सी ऑन मैप। दैट टाइम द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान consisted of 2 non-contiguous partition, West Pakistan and East Pakistan. It is important to note that the act for the first time brought about the division of India to independent states on communal basis, which was hitherto known to the history। Next देखते हैं द प्रिंसली स्टेट हैव लिबर्टी। कैसी लिबर्टी? ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और एवर रिमेन इंडिपेंडेंट। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। आप समझ सकते हैं कि इस लिबर्टी से इंडिया के कितने टुकड़े हो जाते उस टाइम पे।
यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को यूनाइट करने में। इनसे रिलेटेड मैं 2 फैक्ट यहाँ बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह स्टैचू इंडिया के किस स्टेट में है। अब पॉइंट पे आते हैं कि इस एक्ट में प्रिंसली स्टेट को जो लिबर्टी मिली थी उसका क्या रिजल्ट हुआ। 3 princely states declared themselves independent, जिसको आप मैप पे देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। हैदराबाद जूनागढ़ काफ़ी एफर्ट के बाद इंडिया में मर्ज कर लिया गया। नेक्स्ट, अदर दीज जम्मू एंड कश्मीर वॉज फुल्ली incorporated into India after 72 years with abolition of Article 370। यहाँ आप जम्मू कश्मीर के नए मैप में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकेंड लद्दाख। इसके बाद भारत में 28 स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरीज 7 से बढ़कर 9 हो गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर 1 कर दिया गया है। आइए इस एक्ट से रिलेटेड अदर फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India, 15 August 1947 to 2 June 1948. Next, the first and last Governor General of Independent India, C. Rajgopalachari, 21 June 1948 to 26 January 1950. Next, mind map। इस माइंड मैप में आप एक नज़र में जान सकते हैं कि इस एक्ट में क्या खास चेंजेस हुए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फर्स्ट, एबॉलिश्ड द ब्रिटिश रूल, ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। सेकेंड, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान डिस्कस कर चुके हैं। लिबर्टी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लिबर्टी भी देखा हम लोगों ने। एबॉलिश द वाइसरॉय पोस्ट। नेक्स्ट, रीजनरेटेड पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, एबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट, ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मेन फीचर्स थे इस एक्ट के। आइए इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान और डिकी बर्ड प्लान इज रिलेटेड टू विच एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, who commented the Cripps mission was post-dated check on a crashing bank. Long question, under which circumstances was the partition of India in 1947? Second question, analysis the Dickey Bird plan. यहाँ ऊपर जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स नीचे दिए हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।